with the bacteriological bacteriological investigation, and then we'll cover up the intracanal medicament. So, what are the bacteria responsible for the failure of the root canal treatment, or what are the bacteria found uh, in the pulpitis cases? Rushi, any idea? Which is the most common Um, bacteria found in the E. faecalis, E. faecalis? Yes, very good. And other bacterias? E. faecalis. Provatella, Fusobacterium, Yes, है ना? Eubacterium. Yes, and this bacteria E. faecalis is the most resistant bacteria. मतलब it doesn't respond to any antibiotic. मतलब rarely. So we need to do culture कि किस बैक्टीरिया मतलब किसके अगेंस्ट ये काम करता है. तो this is the most common factor मतलब microorganism responsible for the failed root canal treatment. Okay, so there are various intercanal medicaments are there to uh, 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 just a minute, I'll share the slide. Hmm. Counter these bacterias. Okay. So mainly the bacteria such as E. faecalis, Prevotella, and Fusobacterium are commonly associated with chronic endodontic infection. But the most common and the most resistant one is a E. faecalis, and this is a very frequently asked question in the exam. Okay. So so what is the role of intracanal medicament? Usually क्या नाम है Rushi, you we nowadays we usually prefer doing single sitting root canal treatment. Okay, but in case of the non-vital tooth or failed root canal treatment or क्या मतलब this the root canal treatment with sinus opening, in that cases or weeping canals, okay, in such cases we need to give the intracanal medicament. ठीक है, सो फॉर द प्रॉपर स्टरलाइजेशन. पहले क्या था, पहले लेजर लेजर नहीं था. ठीक है, नाउ डेज वी यूज लेजर ऑल्सो. सो लेजर हैज अ complete 100% disinfection. So before the evolution of the laser, we have to depend on the intracanal medicament. So most commonly used intracanal medicament was the calcium hydroxide. Okay, and who has given the term calcium hydroxide? किसने दिया था? This is also frequently asked question. Harman. Harman ne naam. Yes. You know, and what is the pH value of the calcium hydroxide? What is the ये pH value of चली calcium hydroxide? हम 10 to 12 अराउंड ही होती है इसकी. It's also around 12.5, 10 to 12. And most remember 12.5. Okay. MTA also 12.5 and calcium hydroxide also 12.5. Okay. It is used as an intracanal medicament used for indirect pulp capping, direct pulp capping. Okay. And in your pexification procedures also. And just a minute. But this calcium hydroxide is not effective against E. faecalis. Okay, so this is a disadvantage. Calcium hydroxide is very good, but it is not effective in ई फेकालिस. जो आपकी फेल्ड रूट केनाल ट्रीटमेंट होते हैं वहां पर अगर आप डालते हो रूट केनाल मतलब ये देते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है ना. कई बार बहुत लंबे केसेस खिंच जाते हैं. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए फेल्ड केसेस में, या फिर आप देखते हो कि साइनस ट्रैक्ट वाले केसेस में विच इंटरकेनाल मेडिकामेंट इज बेनिफिशियल सो इन सच केसेस. हाँ बताओ, और कौन कौन से पता है आपको इंटरकेनाल मेडिकामेंट? जस्ट मिनट आई एम कवरिंग. Chlorhexidine. Chlorhexidine. Is chlorhexidine effective against E. faecalis? Just a minute. Yes, chlorhexidine is still okay and it is effective against E. faecalis in most of the studies. ठीक है, लेकिन हाँ, okay, will come.
ठीक है। एंड कितना कैसे कितने परसेंटेज हम यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन का? बोलो ऋषि, एम आई ऑडिबल? कहीं डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ? हेलो, हेलो, हिमांशु, जस्ट मिनट, आई यूज ये ब्लूटूथ मुझे दे दो प्लीज, अभी दो इधर। सिर्फ एक नहीं बेटा नहीं, वो इससे कनेक्ट होगा ना। चलो, आपको क्या करना है फिर, वो तो इसमें आ जाएगी। हाँ, हेलो ऋषि, इज एनी डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम? Okay, tell me, what is the percentage of chlorhexidine we use in the clinics? It's a 2%, okay? And it is in the two forms, solution form and gel form, okay? In intracanal medicament, we use in the form of gel. Just what I'm looking for the option, Bluetooth option. So, but what are the limitation of this chlorhexidine? We cannot use it with the sodium hydroxide, okay? And it doesn't have a tissue dissolving properties. Okay, so so there's a next option is a triple antibiotic paste. ठीक है, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ओके, एंड इट इज अ वेरी गुड intracanal medicament, okay. What antibiotics are used in triple antibiotic paste? बताओ, show Bluetooth devices, just a minute, add device, this is ciprofloxacin, metronidazole, minocycline. Just a minute, I'm adding this. ये हो नहीं रहा है मांशु। यार तुमने ब्लूटूथ कहीं और कनेक्ट किया है? नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहे? तो ऑन नहीं किया है अभी। अच्छा, कनेक्ट हो गया है, चलो ओके फाइन। दूसरा वाला भी दे दो बेटा। मैं नहीं दूंगा, चल भाग जाओ, ठीक है चलो। So triple antibiotic paste, okay, it has a composition ciprofloxacin, metronidazole, and minocycline in the ratio 1:1:1, okay, एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ई फेकालिस। ठीक है, तो आपका जो साइनस ट्रैक्ट है, जहाँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। एक तो रीजेनरेटिव एंडोडोंटिक्स में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, बच्चों में भी यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ही जो छोटे बच्चे होते हैं कि आप यू कैन नॉट परफॉर्म द रूट कैनाल इन सच पेशेंट लाइक बिलो 3 years, है ना, मुंह नहीं खोलते, तो हम क्या करते हैं, एक्सेस ओपनिंग करके, ठीक है, उनका वी हम वहां पर ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट छोड़ देते हैं, तो वो केनाल्स को स्टरलाइज कर देता है। ठीक है, इस टेक्निक को एलएसटीआर भी बोलते हैं, लीजन स्टरलाइजेशन टेक्निक इन एंडोडोंटिक्स। ठीक है, एलएसटीआर है ना, इट्स एलएसटीआर टेक्निक। So we have the intracanal medicament calcium hydroxide, chlorhexidine, and कहाँ गए, बात तो गलत हो गया हमसे। सॉरी, एक मिनट, वेलकम। ओके, हाँ हाँ, नाउ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, इट इज ऑल्सो हैविंग एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, आयोडीन का मेटापेक्स जो आते हैं या आयोडीन वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनमें भी एंटीबैक्टीरियल एक्शन रहता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हम कैसे करते हैं? वैसे तो हम क्लिनिक्स में नहीं यूज करते, लेकिन जो रिसर्च में यूज होती है, कल्चर मेथड यूज किया जाता है। तो कौन सा कल्चर यूज करते हैं? अगार डिफ्यूजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन अ एमसीक्यू क्वेश्चन। द ट्रेडिशनल मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ फ्लूइड on growing bacteria in specific media. However, this process can be time consuming and often fail to detect bacteria that are difficult to culture. ठीक है, यूजुअली जो थीसिस किए जाते हैं ना,
कि हम वी डिटेक्ट कि कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म है इस कैनाल्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि पेपर पॉइंट से जो है वहाँ का टिश्यू वो लेते हैं और उससे कल्चर करते हैं। तो कल्चर के लिए हम अगार डिफ्यूजन यूज करते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो अब न्यू टेक्निक्स के आगे मॉलिक्यूलर टेक्निक लाइक पीसीआर, डीएनए माइक्रो अरेज, next generation sequencing. So these are for the bacteriological investigation. So what are the challenges in intracanal medicament? I have told you significant challenge remains, particularly with the regard to the removal of bacteria from the apical third of the root canal. Biofilm formation plays a crucial role in the persistence of infection. Biofilms protect bacteria from the effects of medicament and are often resistant to disinfection procedure. And species like E. faecalis exhibit a high level of resistance to common intracanal medicament. ठीक है, the ability of these bacteria to remain viable under harsh condition complicate treatment outcomes. तो अब एडवांसमेंट क्या हो गया, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में सिल्वर, ठीक है, पार्टिकल सच एज सिल्वर एंड जिंक ऑक्साइड हैव शोन प्रॉमिस इन एंडोडोंटिक्स फॉर द एनहांस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो आजकल सिल्वर डायमंड फ्लोराइड भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके सोडियम हाइपोक्लोराइड हम यूज करते ही करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, कि अगर ये टिश्यू पर गिर जाता है तो आपका पूरे का पूरा वहां पर इरोजन हो जाता है ना, अल्सर हो जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से। तो अब जो दूसरे इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, एंडोजाइम है, पेरोक्साइड बेस्ड सॉल्यूशंस आर यूज नाउअडेज। ठीक है, तो एंडोजाइम में जो मेन क्या आता है, जो होता है कि जिसका एक्शन होता है कि स्मेल रिमूवल, तो पैपेन पर स्टडी काफी हुई है, पपीता है ना, तो इट्स ए पैपेन, उसमें एक एंजाइम होती है जो कि आपका स्मेल लेयर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि आप गुड बैक्टीरिया बढ़ा देते हो कैनाल्स में, है ना, जो बॉडी में फाइट करते हैं, तो विच प्रमोट हेल्दी माइक्रोबियल कम्युनिटी कुड बी यूज इन कंजक्शन विद ट्रेडिशनल एंटोमाइक्रोबियल थेरेपी। तो अब कैनाल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं प्रोबायोटिक्स जिससे कि हीलिंग होती है एंड प्रिवेंट री इन्फेक्शन। ओके, सो दिस वाज द इंट्राकेनाल मेडिकामेंट। तो यहाँ पर जो मेन मैम है, हेलो, मैम यस, प्रोबायोटिक्स में इसमें एग्जाम्पल क्या होगा जो हेल्दी बैक्टीरिया हम बढ़ा देते वो? हाँ, ये एक मिनट, आई टेल यू। इसमें दो बैक, रुको, so we have covered probiotics bacteria, just a minute, I'll tell you in एंडो, एक तो लैक्टोबैसिल बताती हूँ, एक तो लैक्टोबैसिलस करके है, मैं दोनों के प्रॉपर स्पीसीज का नाम बता रही हूँ, है ना आपको। हाँ, आगे देखो प्लीज, ये नेम याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 4 बैक्टीरियाज हैं, लेकिन इनमें से 2 ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, तीनों लैक्टोबैसिल रैमनोसोसरस, लैक्टोबैसिल र्यूटेरी, ठीक है, ये तीनों लैक्टोबैसिलस की फॉर्म है प्रोबायोटिक्स में। ठीक है, और एक है बाइफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस K12। तो आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू, ठीक है, ओके द मैम। ग्रुप, है ना। तो दीज ओके। आर द प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स जो कि बेसिकली हेल्प करती हैं कि काउंटर करने में, मतलब दीज आर द हेल्दी बैक्टीरिया। तो आपका जब कैनाल क्लीन कर देते हैं तो आप ये बैक्टीरिया भी उसमें डाल सकते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जो कि फाइट करती हैं आपकी ई फेकालिस और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उनके साथ। ठीक है, इट हैज ओके मैम। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अगेंस्ट ई फेकालिस, ठीक है, एंड मॉड्यूलेट इम्यून रिस्पॉन्स, बायोफिल्म इनहिबिशन, जो बायोफिल्म बनते हैं उसको इनहिबिट करता है, एंड पोटेंशियल इंट्राकैनल मेडिकामेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे रिसेंट एडवांसमेंट है। ठीक है, ओके मैम। तो आई शेयर, एंड नैनो टेक्नोलॉजी का भी आई टेल यू। वेरी गुड, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि जितना हम क्वेश्चंस पूछेंगे ना उतने हम विल मतलब एक्सप्लोर न्यू दिस थिंग। श्योर मैम। हाँ, तो ये दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन। ठीक है, प्रोबायोटिक्स के बैक्टीरिया भी। ठीक है, अब नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यू दिस सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो कि हम इंट्राकैनल मेडिकामेंट में यूज करते हैं। बेसिकली स्मॉलर साइज होता है, लेस देन 100 नैनोमीटर, allows better penetration to dentinal tubules, high surface area to volume ratio, can target biofilm, especially Enterococcus faecalis.
Common nanoparticle are used silver nanoparticles and chitosan nanoparticles. ठीक है, जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नैनोपार्टिकल, क्वाटरनरी अमोनो नैनोपार्टिकल्स बेनिफिट improve disinfection, enhance penetration, sustained release, and potential in regenerative endodontics. ठीक है, आपको regenerative endodontics पता है? रुचि, डू यस यू मैम, नो आप अबाउट? हाँ, मैम regenerative आपने endodontics. बताया ना, वो स्टेम सेल से करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ प्रोसीजर क्या होता है। रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स वी यूजुअली डू इन अ इमैच्योर टूथ, ठीक है, ओपन कैनाल, एंड इट शुड बी नॉन वाइटल टूथ, ठीक है। कोई दांत है बच्चे का, बच्चा गिर गया, फ्रैक्चर हो गया दांत, काफी टाइम तक नॉन वाइटल हो गया, एंड इट्स ओपन अपेक्स, ठीक है, कि अब वहां पर क्या, डेंटिन इज वेरी थिन, एंड आप एक्सिफिकेशन कर भी दोगे तो डेंटिन इज थिन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीजनरेशन कराते हैं डेंटिन की वापस से। कैसे कराते हैं, इसमें 2 अपॉइंटमेंट प्रोसीजर रहता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आप जो एलए देते हो विदाउट लोकल विदाउट वेसो कंस्ट्रिक्टर देते हैं, ठीक है। एक्सेस ओपनिंग करते हैं, ठीक है, और इरिगेट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से, कितना, 20 ml के अराउंड, ठीक है। ओके। अच्छे से इरिगेट किया जाता है और फिर सील करके हम भेज देते हैं कैविट से। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जब पेशेंट आता है, फिर से एलए दिया जाता है। अब क्या करते हैं, उसको हम फाइल से पूरा पूरा पल्प नहीं निकालते, वी डोंट रिमूव द पल्प कंप्लीटली, नहीं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब हमने हाइपोक्लोराइड से जब इरिगेट किया ना, उसके बाद हम ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट डाल के छोड़ देते हैं बेटा, फर्स्ट ओके। अपॉइंटमेंट में ऊपर। हम लेकिन टिश्यू नहीं निकालते वहां पर, ठीक है। अच्छा। आपने ओपनिंग की, ओपनिंग करने के बाद आप सोडियम हाइपोक्लोराइड अराउंड 20 ml के अराउंड आप पूरा इरिगेट करते हो विदाउट रिमूविंग द टिश्यू, ठीक है। ओके। और फिर ऊपर से आप सील कर देते हो ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट से, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, फिर आप कैविट और ऊपर से जीआईसी से सील करके छोड़ देते हो, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए। जब नेक्स्ट टाइम अब क्या है, जो केनाल होगा अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट टिश्यू है वो लीजन स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है। अब जब ओके। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है, हम ओपन करते हैं वापस, ठीक है। अब हम फाइल से वी गो बियॉन्ड द दिस थिंग, अपाइकल फोरामेन के बियॉन्ड जाते हैं हम फाइल से, कि ब्लीडिंग इंड्यूस हो केनाल के अंदर, ओके। ठीक है। अब जो ब्लीडिंग इंड्यूस होती है, वेट फॉर 15 मिनट कि वो क्लॉट बन जाए वहां पर, ओके। ठीक है। क्लॉट बनने के बाद हम उसको सील कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक तो हम ब्लीडिंग इंड्यूस कराते हैं, ये मेथड है। दूसरा है कि हम पीआरपी भी डाल सकते हैं उसके अंदर, कि खुद का जो पेशेंट का बनाया हुआ पीआरपी डालते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स की तरह काम करता है, उसको सील करते हैं, फिर परमानेंट रेस्टोरेशन करके क्राउन कर देते हैं। अब धीरे धीरे जो स्टेम सेल्स हैं, ये वापस से आपका डेंटिन जनरेट करेंगे और अपेक्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। दैट मतलब इज द मैम उसके अंदर रीजनरेटिव ब्लड जो एंडोडोंटिक्स। जो क्लॉट ब्लड, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई उसको वैसे ही छोड़ के और ऊपर से फीलिंग कर देंगे। हाँ, हाँ, ऊपर से फिलिंग कर देते हैं ना। हाँ, ओके। और मैम जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है उसमें जीआईसी मतलब उसको पूरा प्रॉपर पैक करना है कि हम लोग टेम्परेरी भी दे सकते हैं? आई टेल यू क्या होता है, क्या होता है कि परकोलेशन ना हो। हमने फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपने एलए दिया विदाउट वेसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, अच्छे से इरिगेट किया हाइपो से। उसके बाद हम उस पर ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट डालते हैं, कैविट डाला, ठीक है। कैविट के ऊपर हल्का सा जीआईसी लगा देने से क्या है कि सलाइवा अंदर नहीं जाएगा उसमें, ओके। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। कैविट भी ला कर छोड़ सकते और हो, लेकिन आप जीआईसी से कवर कर देते हो तो ये होता है कि आपको परकोलेशन नहीं होता उसमें सलाइवा का अंदर कुछ भी। अब जो ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट ना, ये क्या करता है, जो लीजन होता है उसको स्टरलाइज कर देता है, मतलब जो ओके। पल्प टिश्यू और जो रह गया ना अंदर, वो स्टरलाइज हो जाएगा आपका। ओके। और मैम इसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैसो कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी ना बेटा, ओके। इसलिए हम जो यूज करते हैं ना, तो हम विदाउट वेसो कंस्ट्रक्टर वाला यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ब्लीडिंग करानी है पेशेंट को। आप वेसो कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे तो ब्लीडिंग को कम कर देता है ना वो, ओके, ठीक है मैम। है ना। हाँ, तो उसके बाद जब सेकेंड अपॉइंटमेंट जब हम फाइल डालते हैं, हम बेंड द अपेक्स डालते हैं, ठीक है। हमारा वहां पर ओके। मतलब मेन ये नहीं होता कि हम पल्प टिश्यू को रिमूव करें, हमारा मेन रहता है कि हम बेंड द अपाइकल फोरामेना के वहां जाए, स्कैप बोलते हैं, वहां से हम स्टेम सेल्स लेकर आए अपाइकल पैपिला के वहां से, और वहां पर ब्लीडिंग होगी आपके सीजे के वहां पर ऊपर। जब तो ब्लीडिंग को मैम ये हम जो 15 मिनट वेट करते हैं, जो सेकेंड किनार सिटिंग में है मैम, ब्लीडिंग हम पूरा पल्प रिमूव करते हैं क्या? नहीं करते, पल्प रिमूव नहीं करते। वी हैव टू मिनिमम इंस्ट्रूमेंटेशन करना है आपको, इंस्ट्रूमेंट हाथ नहीं लगाना,
वी डोंट Okay, हैव ma'am. टू यूज रीमर्स, फाइल्स, कुछ नहीं यूज करना, Okay. है ना। तो हमें पल्प टिश्यू वैसे का वैसे ही छोड़ना होता है, ठीक है। इट्स अ रीजनरेशन। तो हम वहां पर बेंड द अपाइकल पेपिला जाते हैं, वहां से ब्लीडिंग इंड्यूस कराते हैं, 15 मिनट्स हम वेट करते हैं क्लॉट बनने का, फिर उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है Okay, ma'am. है ना। तो उससे क्या होता है, जो ये बनता है इसमें स्टेम सेल्स, एक तो ब्लीडिंग इंड्यूस कराने का मेथड है, और दूसरा कि अगर आपके पास पीआरपी बनाने का तरीका है, पीआरपी इफ यू नो, तो आप पीआरपी फाइबर्स उसमें डाल सकते, पीआरपी फाइब्रिन डाल सकते हो उसके अंदर, वो ये बहुत अच्छा जनरेट कराता है स्टेम सेल्स, Okay, ma'am. रहते हैं ना पीआरपी के अंदर, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो उससे क्या आपका जो ये अपेक्स है ना, जो आपका अपेक्सिफिकेशन में जो आधा रह गया, तो ओपन अपेक्स, ये धीरे धीरे अपने आप स्लोली इट विल क्लोज डाउन and dentin formation will take place, Okay, ma'am. ठीक है। एंड दिस ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इज ऑल्सो इन LSTR प्रोसीजर, लीजन स्टेरिलाइजेशन, जस्ट मिनट इसको बोलते हैं, ओके, आई हैव रिटन, हाँ, ओके, ओके। एलिस्टियर लीजन स्टेरिलाइजेशन एंड टिश्यू रिपेयर टेक्निक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी यही रहता है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, हम वहां पर पल्पेक्टमी के लिए उतना मुंह नहीं खोल सकते है ना, नहीं करा सकते कि हम उनमें इंस्ट्रूमेंट डालें, पूरा क्लीन करें, मेटापेक्स डालें, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब करा लेंगे उस वक्त, लेकिन उस वक्त हम नहीं कर पाते। उस वक्त हम क्या करते हैं, बच्चों को हम उनका रूट केनाल जो है होता है उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, उसमें ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट प्रिपेयर करके हम डाल के छोड़ देते हैं और उसको सील कर देते हैं, ठीक है। एंड ओके, और फिर उसको जीआई से सील करके क्राउन देकर छोड़ देते हैं। अब ये जो एलएसटीआर की हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगी चीजें 100% सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी काफी हद तक सक्सेसफुल रहते हैं ये केसेस, ठीक है। तो मतलब इनका जो सक्सेस रेट है पल्पेक्टमी से कम है, ठीक है। पल्पेक्टमी से गोल्ड स्टैंडर्ड कि अगर लीजन हो गया तो आपको पल्पेक्टमी करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या करो कि आपने ओपनिंग की, अच्छे से इरिगेट किया, उसके बाद तो लेजर से कैनाल को पूरा स्टरलाइज कर दो, ठीक है, या फिर उस पर ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट डाल के सील करके छोड़ दो। लेजर का एडवांटेज यही है कि वो लीजन्स को स्टरलाइज कर देती है, इट कैन ट्रेवल थ्रू द टूथ पूरा, ठीक है। अब जो पल्प टिश्यू जो रह जाएगा, इट विल बी अ मतलब बैक्टीरिया फ्री, ओके। Okay, ma'am. We'll cover up MCQs later. First, we'll cover up the theory. Okay. So these are the intracanal medicament, है ना। तो इंट्राकैनल मेडिकामेंट हमें कहाँ देने, वीपिंग कैनाल्स होते हैं, यहाँ पर साइनस ट्रैक्ट बन गई है, ठीक है, या फेड रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, वहां पर हमें वी शुड गो फॉर इंट्राकैनल मेडिकामेंट। बट if there is no infection, like we do single sitting, है ना। अगर ऐसे कुछ स्वेलिंग ऐसा नहीं है, एब्सेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो वी गो फॉर सिंगल सिटिंग ओनली, एंड सिंगल सिटिंग केसेस आर मोर सक्सेसफुल देन द मल्टीपल सिटिंग केसेस। Okay, next we come to evaluation of and instruments. So Rushi, who has given the first endo instrument? हम एडविन मैट्रियार्ड क्या था? हाँ हाँ, एडवर्ड yes, मैट्रियार्ड. हाँ हाँ, just a minute. So he used a use watch spring as a फाइल, उसने घड़ी की स्प्रिंग निकाल के यूज की थी, ठीक है, मॉडिफाई करके, जस्ट a minute. ओके, डेवलपमेंट ऑफ रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हमने काफी हिस्ट्री तो कल कवर कर ली थी, ठीक है, यहाँ पर कुछ नेम्स और दिए हैं, ठीक है। एडविन मेनर्ड का नाम तो को पता ही है, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फाइल फ्रॉम वॉच स्प्रिंग, ठीक है, एंड रोइंटसन ने ही हैज गिवन द एक्सरेज, ठीक है। जो कर था KERR, उसने क्या दिए थे, फाइल्स दिए थे, है ना, के टाइप ये सारे, ठीक है। 1950s और 1970s में स्टेनलेस स्टील फाइल्स आए थे, रिप्लेस्ड कार्बन स्टील, एंड 90s में आए थे निकल टाइटेनियम रोटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब
मॉडर्न एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब वी कम टू इनका स्टरलाइजेशन प्रोसेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इनको, ठीक है। अब ये तो हो गए फाइल्स हो गए, और क्या क्या रहते हैं, रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं आजकल, ठीक है, कि आप हाइपो को डाल के उसको एक्टिवेट करते हो। इंजन ड्राइव रोटरी नाइट आई एंडोडोंटिक हैंड्स, ठीक है। व्हाट आर द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ऋषि बोलो। मैम ऑटोक्लेविंग होता है और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वेरी गुड, कोल्ड स्टरलाइजेशन हो गया, ठीक है। ग्लूटरलाइट, ग्लूटाराइड, हाँ इसे हाँ, भी करते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन हो गया। और मैम बॉइलिंग, और एक ऑटोक्लेविंग वो इज, रूट कैनाल के लिए मैम वो हॉट सॉल्ट यूज करते हैं ना। वेरी गुड, सॉल्ट बीट स्टरलाइजर यूज हाँ करते हैं। सॉल्ट बीट स्टेलाइजर वो। और ओके, ऑटोक्लेविंग इज अ स्टीम स्टरलाइजेशन। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। वे यूजुअली हेलो। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहाँ यूज करते हैं, लैब्स में, और 2 आवर्स, ठीक है। एंड और थर्ड इज अ केमिकल और वेपर स्टरलाइजेशन, जिसमें आपने बताया कौन सा, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और क्या, ग्लूटाराल्डिहाइड हो ग्लूटाराल्डिहाइड। गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया अंडर प्रेशर। तो दीज आर केमिकल वेपर स्टरलाइजेशन। हाँ, फिर आपका ग्लास बीट स्टरलाइजेशन, ग्लास बीट स्टरलाइजेशन में कितना टाइम रहता है, मैम कितना टेम्परेचर 15 कितना होता है, सेकेंड्स, 2 फोर सेल्सियस फॉर फोर 15 टू फोर। 30, हमें ना हमेशा 15 to 30, हाँ, ग्लास बीट स्टरलाइजर में, ठीक है। और इसमें आप अपने फाइल्स भी कर सकते हो, बर्स भी कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। अब क्या होता है, यूजुअली स्टीम स्टरलाइजेशन में बहुत से इंस्ट्रूमेंट कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। आपकी नाइटाई फाइल्स, मतलब फाइल्स बराइस, तो अब क्या न्यू टेक्निक के आगे प्लाज्मा स्टरलाइजेशन होता है एक, ठीक है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है, उसके वेपर्स चैम्बर में डाला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें से वेपर्स रिलीज होती हैं, ठीक है, जो कि फ्री रेडिकल्स छोड़ती है और माइक्रोब्स को किल करती हैं। तो दैट इज अ प्लाज्मा स्टरलाइजेशन न्यू टेक्निक, ठीक है। तो मैंने आपको ऑटोक्लेविंग बता दिया, ड्राई हीट बता दिया, केमिकल स्टरलाइजेशन बता दिया, और ग्लास बीट स्टरलाइजर बता दिया। अब गट्टा पर्चा को हम कैसे करते हैं, हम हाइपो में 1 मिनट अगर के लिए डिप करते स्टरलाइज हैं। करना हो तो वी हम हाइपो इमर्स द में गट्टा डिप पर्चा करते हैं। को, हाइपो, यस, वेरी गुड, हाइपो, हाइपो में, यस, ठीक है। सो दीज आर द मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। एंड मोस्ट कॉमनली वी यूज ऑटोक्लेविंग, ठीक है। एंड कोल्ड स्टरलाइजेशन हो गया, ग्लूटाराल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी चीजें। और जैसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका रबर डैम हो गया, है ना, किट हो गया, आप इसको बार बार ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वी यूज यूजुअली कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। आपके ऑर्थो के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको कोई बार बार नहीं करूंगे, खराब हो जाएंगे प्लायर्स सारे, तो उनको हम करते हैं, ठीक है। केमिकल स्टरलाइजेशन, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी आजकल की जाती है, ठीक है। एंड एंजाइमेटिक सॉल्यूशन टू रिमूव डेब्रिस बिफोर स्टरलाइजेशन, बिफोर स्टरलाइजेशन यू हैव टू रिमूव द डेब्रिस, उन्हें क्लीन करना है, ठीक है। यूजुअली अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की जाती है स्टरलाइजेशन से पहले, और नहीं तो हम नॉर्मली क्लिनिक में क्या करते हैं, सोप वाटर में अच्छे से रिंस करते हैं ब्रश से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद रैप करके ऑटोक्लेव में लगाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन बता दिया, यूज लो टेम्परेचर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्लाज्मा टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट सुइटेबल फॉर हीट सेंसिटिव डिवाइसेस, इट इज एक्सपेंसिव वन एक्चुअली, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। अच्छा ये बताओ, वैसे जो सिरेंजेस होती हैं, इनको कैसे स्टरलाइज करते हैं, हमें जो मिलती है स्टरलाइज मिलती है ना, तो मतलब ये इंडस्ट्री से स्टरलाइजेशन होता है क्या, क्लिनिक्स में नहीं होता, इंडस्ट्री में किससे स्टरलाइज करते हैं,
कौन सी गैस यूज होती है? इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन यूज फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट लाइक प्लास्टिक सिरिंजेस एंड अदर डिस्पोजेबल आइटम्स। हमारे पास जो ये आते हैं ना, जैसे आपके सक्शन टिप्स आ गए, ये सब आ गए, ये बनने के बाद इनको एक बार स्टरलाइज भी किया जाता है। तो कैसे करते हैं? हीट, इनको गैस स्टरलाइजेशन किया जाता है सबको, ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड यूज की जाती है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, ठीक है। स्मार्ट ऑटोक्लेव्स हैव कम इक्विप सेंसर टू मॉनिटर स्टरलाइजेशन साइकिल इन रियल टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि मतलब यहाँ पर तो यूजुअली क्या है, लोग ना अलग से स्ट्रिप्स आती हैं जो कि चेक करते हैं कि आपका स्टरलाइजेशन प्रॉपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उन स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं? कौन सा बैक्टीरिया हम चेक करते हैं स्टरलाइजेशन में? नहीं पता मुझे, पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा है। हाँ, आई टेल यू, इसमें था ऐसे स्ट्रिप्स आते हैं, वो स्ट्रिप्स उसके अंदर ऑटोक्लेव में लगा कर छोड़ दी जाती है, ठीक है। आई टेल यू, इससे बैक्टीरियल इंडिकेटर स्ट्रिप्स आर यूज टू वेरीफाई इफेक्टिव स्टरलाइजेशन, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? बेसिलस, बेसिलस एट्रोफियस एंड जियोबेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया के सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हाउ इट वर्क्स? स्ट्रिप कंटेन स्पोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड स्टरलाइजर ड्यूरिंग द साइकिल। आफ्टर स्टरलाइजेशन इट्स incubated in a growth medium, no color change, सक्सेसफुल स्टरलाइजेशन, ग्रोथ स्टरलाइजेशन फील्ड। तो इसमें कलर चेंज हम देखते हैं बेसिकली स्ट्रिप्स में, है ना। तो ये स्ट्रिप्स में ऑलरेडी स्पोर्स लगे हुए आते हैं, हम ऑटोक्लेव में इनको रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोक्लेव होने का इनका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये तो उसका ग्रोथ मीडियम का बताया हुआ है। ग्रोथ मीडियम में आजकल ना अलग से भी आ रहे हैं जो कि कलर चेंज करते हैं स्ट्रिप्स का। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम चेक करते हैं, दैट इज अ बेसिलस, ठीक है। बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड बेसिलस एट्रोफियस करके नाम है, उसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं स्टरलाइजेशन इज इफेक्टिव और नॉट, ओके, ओके। एंड थर्ड इज विल कवर अप दिस एमसीक्यू, डोंट वरी, जल्दी से। उसके पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक इज आर, एक बार स्टैंडर्डाइजेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कवर नहीं किया, ठीक है। आई टेल यू अबाउट द स्टरलाइजेशन, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। हमारे जो सबसे क्या आते हैं, फाइल्स होते हैं, रीमर्स होते हैं, ठीक है। रीमर्स का कैसा होता है? ब्लेड क्या क्या शेप का होता है? रीमर्स का ट्रायंगुलर शेप का होता है। फाइल्स का क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइल्स आर मोर रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर, ठीक है। रीमर्स की कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है एंड फाइल्स की क्या होती है? फ्रैक्चर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो अब क्या हो गया कि जो रीमर्स होते हैं ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। अब नाउ डेज क्या कर दिया है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कंपनी, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन कब होगा? जब कैनाल नैरो होगी, है ना, तभी इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन ज्यादा होता है। तो हमारे जो पतले किनार्स होते हैं वहां पर हमें हमेशा स्क्वायर ब्लैंक यूज करना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर ब्लैंक। और जब किनार वाइड होगी, आपको कटिंग एफिशिएंसी चाहिए, तब आप रिमर यूज करो, ओके, गॉट इट, ठीक है। मतलब जब फर्स्ट फाइल डालते हो, ऋषि, गॉट इट, आपको रिमर नहीं यूज करनी चाहिए, पहले आपको फाइल यूज करनी चाहिए। फाइल हैज अ रेजिस्टेंट पावर, ठीक है, कि उसका फ्रैक्चर नहीं होता जल्दी, और रिमर जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। जो अच्छे कैनाल वाइड होगी तब आप रिमर्स यूज कर सकते हो। रिमर्स की कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ इस ट्रायंगुलर ब्लैंक, ठीक है। अब इनके ये इनके नंबर्स में आता है अलग अलग, ठीक है। जो फाइल्स होते हैं हमारी कहाँ से शुरू होती है? 8, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 60 तक रहता है, 5 5 का डिफरेंस, ठीक है। 60 के बाद कितना आता है डिफरेंस?
10 का अप टू 150। ठीक है, हम लोग जो खरीदते हैं वो 80 तक खरीदते हैं। ऋषि, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, यस मैम। ऑडिबल सुनाई दे रहा है यस ना? यस मैम। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये हो गए इनके कलर्स का, ठीक है, और इनके नंबर्स का। ठीक है, तो सिक्स क्या होता है, कौन सा कलर होता है? पिंक, ग्रे, 6 पर्पल। पिंक। सिक्स पिंक, देन ग्रे, देन पर्पल। फिर हमारा कौन सा होता है? व्हाइट, येलो, येलो, रेड, रेड, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, हाँ, ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, ये हमारे रहते हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं, फर्स्ट 5 का डिफरेंस रहता है अप टू 60 60 तक। फिर 60 ऑनवर्ड्स 10 का 10 डिफरेंस का रहता है। डिफरेंस। ठीक है, गॉट इट। अब इनके जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इनका ये दिया हुआ है कि जो आपको पता है कि जो इनका ब्लेड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे अलग अलग साइजेस में आते हैं। 21 में आते हैं, ठीक है, 25 में आते हैं, और थर्ड 28 में भी 31। आते हैं, 31 में भी आते हैं। 4 साइजेस रहते हैं। ठीक है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम 21 और 25 पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कई बार क्या होता है, केनाइंस होते हैं जो बहुत ही लंबे रहते हैं, तो उनमें 31 या 28 भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, यस तो मैम। ये 4 साइजेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका डायमीटर की। ठीक है, अब जैसे डायमीटर क्या होता है, एक तो इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, ब्लेड की लेंथ, ठीक है, वो कितनी रहती है? अराउंड सबकी फिक्स्ड, दैट इट इज 16 ठीक है, अब डायमीटर द टिप क्या हो रहता है? 100। जैसे आपका 10 है, 10 नंबर की फाइल है, तो उसका डायमीटर कितना होगा? 0.1 1 ठीक है, ठीक है, हाँ, यस। एंड दिस है D1 बोलते हैं इसको। और D2 कितना होता है? 16 पर कितना होगा वहां पर? अब 2% टेपर है ये, तो इनमें 0.32 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.32, तो कितना हो गया? 0.42। ठीक है, D2 डायमीटर कितना हो गया? 0.42। गॉट इट? यस मैम। है ना? तो ये रहता है इनका डायमीटर का। ठीक है, तो ये अलग अलग टेपरेंस में आते हैं, 2%, 4%, 6%, अलग अलग टेपरेंस में आते हैं। ठीक है, ये इनका स्टैंडर्डाइजेशन है। एंगल इनका 75 प्लस माइनस 5 डिग्री ऐसे करके कुछ है इनमें, ब्लेड्स में। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और हाँ, हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे, उनमें भी अगर कुछ डाउट होता है तो यू आस्क मी, है ना? जो भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है पूछना है। यस मैम। And these are very important MCQs actually. We'll cover up. आशीष के यहाँ पर आज लाइट नहीं है बिल्कुल भी, उनके सुबह से लाइट गई हुई है। This phone is not charged actually. Okay. Now we come to restorative materials. ठीक है, अब यहाँ पर restorative materials में क्या क्या है? तो ठीक है, सबसे पहले आता है रिस्ट्रिक्टिव मटेरियल। क्राइटेरिया फॉर आइडियल एंडोडोंटिक रिस्ट्रिक्टिव मटेरियल: बायोकम्पैटिबल, सीलिंग एबिलिटी, रेडियो ओपेसिटी होनी चाहिए, एडेजन टू डेंटिन होना चाहिए। मतलब जो भी हम केनाल के अंदर डाल रहे हैं, इट शुड बी बायोकम्पैटिबल। ठीक है, इट शुड नॉट इरिटेट और पेरिपेकल टिश्यू, इट शुड हैव अ सीलिंग एबिलिटी, मतलब शुड प्रिवेंट माइक्रो लीकेज एंड बैक्टीरियल रीइंफेक्शन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का? टू अचीव हार्मेटिक सील, कि कोई बैक्टीरिया उसमें से पास ना कर पाए कहीं से। ठीक है, यस मैम। एंड रेडियो ओपेसिटी शुड बी देयर, कि अगर हमें कभी एक्सरे लेकर देखना पड़े, चेक करें, तो शुड बी विजिबल ऑन द रेडियोग्राफ। ठीक है, एंड इट शुड एडहेयर टू द डेंटिन, शुड बॉन्ड वेल विद द रूट कैनाल वॉल्स, एंड इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल, इट शुड नॉट shrink or expand excessively, and it should have an antimicrobial property, should inhibit bacterial growth। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट कैनाल ऑब्चुरेशन मटेरियल्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोरेस्ट्रो। गट्टा पर्चा, ठीक है, गट्टा पर्चा इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, अल्फा बीटा फेज। ठीक है, गामा फेज भी होता है, लेकिन गामा फेज ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अल्फा बीटा, अल्फा फेज क्या होता है? अल्फा फेज इज है, इसमें फ्लोइंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, मतलब ये जब बनाते हैं ना उस वक्त का फेज है ना, मतलब नॉन कमर्शियल फेज।
ठीक है। और जो बीटा फेज है जो हमारे पास आता है दैट इज अ बीटा फेज, ठीक है, मतलब सॉलिड फेज रहता है, ठीक है। जब हम इसे हीट करते हैं तो वापस अल्फा फेज में चेंज होता है, कूल डाउन होने पर फिर से बीटा फेज में आ जाता है, ये सॉलिड हो जाना, ठीक है। बीटा फेज इज सॉलिड फेज एंड अल्फा फेज इज अ फ्लोएबल फेज, ठीक है। इट इज बायोकम्पेटेबल, इजी टू मैनिपुलेट, रेडियो ओपेक। डिसएडवांटेज क्या है गट्टा पर्चा का? इट डजंट बॉन्ड विद द डेंटिन, इट लैक्स एडेसिव प्रॉपर्टी, सो वी नीड सीलर, ठीक है, टू बॉन्ड गट्टा पर्चा विद द डेंटाइनल वॉल, ओके। यस मैम। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज द मेन इंग्रेडिएंट इन गट्टा पर्चा? जिंक ऑक्साइड। Yes, 66% is a जिंक ऑक्साइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाम तो गट्टा पर्चा है लेकिन गट्टा पर्चा उसमें बहुत कम होता है, अराउंड 20-22% कुछ गट्टा पर्चा है, ठीक है। एंड जो मोस्ट ज्यादा जो कंस्ट्रेंट है दैट इज अ जिंक जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ओके, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया गट्टा पर रेजोलॉन करके आता है एक मटेरियल, ठीक है, अ सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव गट्टा पर्चा। एडवांटेज बेटर बॉन्डिंग विद रूट कैनाल सीलर, डिसएडवांटेज डिग्रेडेबल ओवर टाइम, ठीक है, इसलिए अब यूज नहीं हो रहा, ठीक है। बायोसिरामिक बेस्ड सीलर्स आ गए हैं, ठीक है, तो दीज आर एंड ऑफ सीक्वेंस बीसी सीलर, एमटीए, फिलापेक्स, बट दीज आर वेरी कॉस्टली, समझ रहे हो, और इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो सीलर जो आते हैं ना आजकल, मतलब सिरिंज फॉर्म में, वो फिर भी यूज कर सकते हैं। एमटी इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल इनसाइड द कैनाल, कई बार बीच में ही रुक जाता है, अपेक्स तक ही नहीं फ्लो कर पाता है ना, तो उसकी मतलब मैनिपुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रूट कैनाल सीलर्स में कौन सा है? जिंक ऑक्साइड इथेनॉल बेस्ड सीलर, इसको रॉथ सीलर भी बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड का है, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल बेस्ड सीलर्स को नाम है रॉथ सीलर, ठीक है। एडवांटेज क्या है? गुड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, लॉन्ग वर्किंग टाइम। डिसएडवांटेज स्लो सेटिंग टाइम, कैन कॉज, अगर टिश्यू के बाहर गया आपके अपाइकल के फोरामेन के बाहर, देन इट कैन कॉज टिश्यू इरिटेशन, अदरवाइज इट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड मटेरियल, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल, ठीक है। रेजिन बेस्ड सीलर्स आर गुड, एच प्लस एपिफेनी, लेकिन इट प्रोवाइड एडिशन। देन जेडोई बेस्ड सीलर्स डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या? श्रिंकेज ओवर टाइम एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि डेंटिन से डायरेक्ट बॉन्ड हो जाता है, अगर आपको रीआरसीटी करना पड़े, निकालना पड़े तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप निकाल नहीं पाओगे इनको, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर्स आ गए, सील अपेक्स, रिलीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रमोट पेरिपेकल हीलिंग, हाई पीएच बैक्टीरियासाइडल, एंड डिसएडवांटेज पुअर बॉन्डिंग विद डेंटिन, ठीक है। बॉन्डिंग के साथ डेंटिन होती है, इसमें बहुत सारे जितने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर्स हैं उनमें क्या डिसएडवांटेज है, जब आप कितना भी अच्छा फिल कर लो उसमें ना बहुत सारे वैक्यूल्स आ जाते हैं, वैक्यूम्स, ठीक है, होल्स ऐसे, जो कि एक्ट्स एज ए न्यूक्लियाई फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ टाइम के बाद ये जो सीलर्स होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जेडोई के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन बेस्ड सीलर्स आ गए, गट्टा फ्लो 2, रोइको सील, have flowable silicon matrix with gutta percha particle. Advantage high elasticity, good adaptability, root canal walls. Disadvantage expensive and technique sensitive. पोस्ट एंडोडोंटिक कोरोनल रेस्टोरेशन, यू नो कि हम क्या करते हैं, अमलगम यूज करेंगे, कॉम्पोजिट यूज करते हैं, ठीक है, ग्लास आयनोमा, दीज आर द पोस्ट एंडो फीलिंग्स। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हमें पता है, एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन, एक्सेस कैविटी तो सभी को पता है बहुत अच्छे से, बिकॉज दिस ब्रेड एंड बटर हम रेगुलरली यूज करते हैं ना टूथ एनाटमी के। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, यूजली ऋषि, जो रूट कैनाल की जो एक्सेस ओपनिंग होती है, ठीक है, इट फॉलोज अ सीजे एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा जो टूथ होता है, एक बल्क बल्क जहां पर बल्क रहता है यूजुअली, ठीक है, कई बार क्या होता है ऑक्लूजली, ऑक्लूजली कंस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है, एंड बल्क आपको कई बार बल्क मिलेगा, जैसे कि कहां पर, कि जैसे मैंडिबल मोलर है, मीजोबकल के यहाँ पर बल्क रहता है, तो ये जो केनाल्स होती है यूजुअली सीजे को फॉलो करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं मीजोबकल कस्प के नीचे हमारा मीजोलिंगुअल, सॉरी मीजोबकल केनाल होती है, ठीक है, एंड जस्ट सेंटर में मीजोलिंगुअल होती है, ठीक है। और उधर हम जाते हैं तो वहां पर हमारा डिस्टल केनाल होता है, डिपेंडिंग कि वो सिंगल है कि डबल है, ठीक है। तो हमें सीजे को हमेशा प्रोब से पहले एक बार चेक करना चाहिए कि उसका सीजे कहाँ है, किस तरीके का शेप है इसका,
ठीक है। तो एक्सेस ओपनिंग वी ऑल नो, ठीक है। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन भी पता है सबको कि कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्चुरेशन वी ऑल डू। व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्चुरेशन? लेटरल कंडेंसेशन, वर्टिकल कंडेंसेशन, सिंगल कोन टेक्निक एंड थर्मोप्लास्टिक जो हम यूज करते हैं ना। तो दीज आर द दिस थिंग। एक होता है एक मेथड होता है ऑब्चुरेशन का, उसको बोलते हैं स्नो, दैट इज अ स्नो कुछ तो। हाँ, आजकल क्या है, जैसे कि जब फिलिंग करते हैं गट्टा पर्चा को, वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द ऑरिफिस, कि हमें ऑरिफिस से पूरा गट्टा पर्चा अच्छे से क्लीनली अच्छे से कंडेंस करना है, एंड इट शुड बी बिलो द 2 mm बिलो द, आपकी जो ऑरिफिस है 2 mm नीचे होना चाहिए गट्टा पर्चा, इतना आप सील करते हो। और जो रह जाता है 2 mm स्पेस, उसको हम फ्लोएबल कॉम्पोजिट से भरते हैं। फिर उसके बाद आप कन्वेंशनल कॉम्पोजिट या पोस्ट ऑपरे मतलब पोस्ट एंडो रिस्टोरेटिव मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको इसको स्नो स्नो फ्लो ऐसी कुछ टेक्निक बोलते हैं, आई थिंक, बाय चेक। I forget the name actually. हाँ, इसको स्नो प्लो टेक्निक बोलते हैं। इन एंडोडोंटिक ऑब्चुरेशन इज ए मेथड यूज्ड टू improve adaptation of sealer and gutta perch in the root canal, especially in lateral and accessory canal. A sealer heavy technique where the sealer is not initially cleaned out, allowing to flow or displace laterally when the master cone is inserted. ठीक है। अप्लाई copious amount of sealer, do not remove the excess with paper point, insert the master cone, the cone push the sealer laterally, filling irregularities, complete vertical lateral condensation as needed, better sealer distribution, improved microanatomy, ठीक है। enhance 3D सीलिंग, स्नो प्लो टेक्निक बोला जाता है इसको, ठीक है। आई शेयर विद यू पीपल, ठीक है। तो दिस इज अ वन। रिमूवल ऑफ केरीज इन्फेक्टेड पल्प, ठीक है। एक्सेस ओपनिंग करने के बाद यू गो फॉर द रूट कैनाल क्लीनिंग एंड शेपिंग। तो ये शेपिंग एंड क्लीनिंग किसने दिया था? कल हमने पढ़ा था, साइंटिस्ट का नाम कौन था? बोलो ऋषि। शील्डन। शील्डर, शील्डन। यस यस, शील्डर, ठीक है। अब आता है ऑब्चुरेशन द रूट कैनाल, ठीक है। ऑब्चुरेशन में यूजुअली 3 मेथड्स इन्होंने बताए हुए होते हैं। लेटरल कंडेंसेशन, वार्म वर्टिकल कॉम्पेक्शन, सिंगल कोन टेक्निक, ठीक है। एंड coronal restoration, composite or crown placement. Recent advancement, bioactive endodontic sealers are there, MTA, Filapex, BioRoot are 3D printed custom post are there, nanoparticle enhanced restorative material, regenerative endodontics using stem cells and bioscaffold. Bioscaffold वही होता है जो मैंने को बताया ना कि हम ब्लीडिंग इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। दैट इज अ बायोस्कैफोल्ड। स्मार्ट सील ऑब्चुरेशन सिस्टम दैट एक्सपेंड टू सील द कैनाल बेटर। ओके, सो विल कवर अप दीज एमसीक्यूज ऑल्सो। इनके जल्दी से एमसीक्यूज कवर करते हैं, फिर कल विल ट्राई टू फिनिश एंडो बाकी भी, ठीक है, ताकि विल गेट एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, हमारा कम्युनिटी में बायोस्टैटिक्स भी रह गया, वो भी हमें कवर करना है। विल ट्राई टू टेक टाइम। दिव्या बेटा, आप ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स थोड़ा सा देखना, अगर पॉसिबल हो तो आप भी लाइव अटेंड क्या करो। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज 5।
Okay, we'll cover up this MCQs. Okay, fine. I'm coming back. आप अपने नोट्स में जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ या आपको शेयर करती हूँ वो नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है? आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा और ग्रुप में भी नोट्स रहेंगे तो आप कभी भी मोबाइल से भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? एंड वीडियो कोर्सेज में सारी रिकॉर्डिंग्स है, प्लीज गो थ्रू देम अगर आपको बीच में जाने का होता है तो, रिवाइज करने का, देखने का कुछ। ओके Okay, now we start. Which of the following is the most commonly used intracanal medicament for disinfection root canal therapy? सोडियम रुषि? हाइपो हाइपो हाँ, नहीं बेटा, इंट्राकेना मेडिकामेंट। हाइपो इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड disinfection. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Yes. Huh? What is the main advantage of using calcium hydroxide in root canal treatment? बोलो. प्रमोट टिश्यू जनरेशन Yes, promotes tissue regeneration. लेकिन हम बैक्टोस्टैटिक, क्योंकि इसमें टिश्यू रीजनरेशन हम कहाँ कराएंगे बेटा? इसमें केनाल तो हमें इंस्ट्रूमेंट तो हम निकाल चुके ना, पर टिश्यू तो रिमूव कर चुके, है ना? रीजनरेटिव उसकी बात नहीं कर रहे ना ये कुछ भी। तो इट इट हैज अ मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट ठीक है? Which molecular technique is considered the most effective for detecting bacteria in root canal? PCR, ठीक है? कल्चर मेथड भी है लेकिन कल्चर मेथड टेक्स टाइम, तो जो न्यू मोस्ट इफेक्टिव है दैट इज अ पीसीआर टेक्निक, ठीक है? ओके, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रूट कैनाल इन्फेक्शंस? बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Which bacteria is most commonly found in persistent root canal infection? E. faecalis. इफिकल्स What is the main function of intracanal medicament during endodontic treatment? क्यों यूज टू करते हैं इंट्राकेनाल एलिमिनेट और कंट्रोल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन infection? Yes. Which of the following substance is known for its bactericidal property? क्लोरहेक्सिडिन क्लोरहेक्सिडिन 2% यूज करते हैं, ठीक है? और अगर आप इसको इरिगेंट भी यूज करते हो, मेडिकामेंट भी यूज करते हो। इरिगेंट आप सॉल्यूशन फॉर्म में, अगर मेडिकामेंट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज ए जेल फॉर्म, ठीक है? Which bacteria is most common resistant to many conventional endodontic instrument medications? E. faecalis, ठीक है? Which of the following is a common limitation of calcium hydroxide as an intracanal medicament? Limited antibacterial effectiveness against biofilms, ठीक है? इज ए कॉमन लिमिटेशन, ठीक है? अब इनएबिलिटी टू डिसॉल्व नेक्रोटिक टिश्यू, दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, नहीं। हाई टिश्यू टॉक्सिसिटी, नहीं। लिमिटेड एंटीबैक्टीरियल इफेक्टिवनेस अगेंस्ट बायोफिल्म्स. In which of the following is the benefit of using chlorhexidine as an intracanal medicament? ब्रॉड It is a स्पेक्ट्रम broad spectrum antimicrobial activity. The bacterial species Enterobacillus faecalis is known for the resistance to ऑल ऑफ द अबव all of the above. Which type of microorganisms are typically found deep within the biofilm in the root canal? एनारोबिक Anaerobic. बैक्टीरिया What is one major drawback of using culture method for bacterial detection in endodontics? Long processing time, ठीक है? तो 24 to 48 आवर्स आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? What role do probiotics play in the field of endodontics? प्रमोट द नहीं, टू हेल्प मेंटेन अ बैलेंस हेल्प माइक्रोबियल एनवायरमेंट, ठीक है? Which bacteria is a major cause of post-treatment apical periodontitis? E. faecalis. And what is the key function of sodium hypochlorite in root canal therapy? Dissolves organic tissue and टिश्यू EDTA क्या करे थे? EDTA acts as a chelating agent, ठीक है? What is the typical pH level of calcium oxide used in endodontics? 10 to 12, है ना? यहाँ पर most closely भी 11 to 12 भी select, ठीक है?
12.5 के अराउंड है सभी का इन सब का, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट 11 to 12 ऑप्शन हियर। Which of the following is not a commonly used intracanal medicament for disinfecting root canal? बेंजोइल क्लोराइड। Which modern diagnostic tool is used for detecting bacteria in the root canal without culturing? PCR. Okay. Which of the following material is being studied for its potential antimicrobial effect in root canal therapy? बायोसेरामिक्स। बायोसेरामिक्स। ओके, मुझे एक बात और याद आई। जैसे मैंने आपको ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट बताया ना, वैसे एक पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट भी होता है। ट्रिपल एंटीबायोटिक हो गया ना, पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट होता है। इट वाज गिवन बाय ग्रॉसमैन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या यूज किया गया था? उसमें यूज किया गया था, एक तो बेसिट्रसिन यूज की गई थी, मतलब 3-4 चीजें यूज की गई थी उसमें पॉली एंटीबायोटिक में। आई टेल यू कि मतलब अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एंड this is a it's a combination of 4 drugs actually. uh, PBSS बोलते को मैं बताते हैं आपको उसको, है ना? मैंने कहीं इसको पढ़ा था। ट्रिपल एंटीबायोटिक प्लेस्ड, हाँ, दैट इज अ, हाँ, ग्रॉसमैन पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। पेनिसिलिन रहते हैं, PSBC, मतलब पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बेसिट्रिसिन एंड कैप्रेट सोडियम एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ए बेस, ठीक है। एंड आप पहले इसको यूज करते थे, ठीक है, ये दिस पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट, लेकिन अब उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट आ गया, तो अब इसको नहीं यूज कर रहे हैं, है ना। रेयरली यूज टुडे ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंसर्न एंड एबिलिटी ऑफ बेटर एजेंट्स। इसको यूज करने से क्या है, बहुत सारे चारों हैं, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, फिर फॉर ग्राम नेगेटिव एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या है कि बेसिकली रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, तो अब इसको बंद हो गया है, नाउ डेज वी डोंट यूज। तो वी हैव कम विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट ग्रॉस में नहीं देता, एंड कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए इसमें कौन सा, बेसिट्रसिन इज अ मेन वन, ठीक है। ओके, so okay, which of the following bioactive material has shown promise for its antimicrobial activity and is used in root canal sealer formulation? Bioceramic material, ठीक है, it has a antimicrobial property and used as a root canal sealer. How does nanotechnology provides improve the effectiveness of intracanal medicament? Nanotechnology, because it has a size less than 100 nanometers, so they enhance the antimicrobial activity and penetration of the medicament into the tubules, ठीक है। Which of the following is a key characteristic of E. faecalis that makes it a challenge in root canal disinfection? It is resistant to many intracanal medicament, ठीक है। What is the main cause of failure in root canal treatment despite the use of intracanal medicament? All of the above. Poor placement of medicament, incomplete cleaning of the root canal system, improper sealing of the canal, and all of the above. What is the effect of biofilms on the effectiveness of root canal medicament? तो बेसिकली बायोफिल्म क्या कर रहे हैं, इट हिंडर द पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस, ओके। Which property of chlorhexidine makes it particularly effective in root canal therapy? Its broad spectrum antimicrobial activity. What is the main advantage of using real-time PCR in endodontic? It can identify bacterial species that are difficult to culture. Which of the following is the potential drawback of using sodium hypochlorite? It is cytotoxic to tissue and in high concentration, ठीक है। कि अगर मुंह में बिना रबर डैम के आप यूज करते हैं कई बार, तो क्या होता है, टिश्यूज अल्सर हो जाते हैं ना पूरा, जहां जहां पर गिरता है हाइपो, ठीक है।
What is the mechanism of action of calcium hydroxide in eliminating bacteria in the root canal? It dissolves bacterial protein by reducing their stability. This is important. Okay, note down. Which bacteria is most associated with root canal infection? E. faecalis. Which method is commonly used in testing susceptible bacteria to intracanal medicament? अगर डिफ्यूजन टेस्ट, ठीक है, जब कल्चर जब चेक करते हैं तो ये यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, कॉमनली यूज अगार डिफ्यूजन टेस्ट, ठीक है. Which of the following medications is used as an irrigant in endodontic therapy? Sodium hypo. What is the main challenge in eliminating enterobicalis? It is resistant to many common root canal medicaments. Describe the impact of biofilm formation in root canal. It decreases bacterial resistance to intracanal medications. Okay, it decreases bacterial resistance. It increases bacterial resistant persistence in the canal. Impact of biofilm. ठीक है. Which bacteria is commonly associated with secondary infection treated root canal? E. faecalis. ये बहुत कॉमन है. E. faecalis पे क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है. ओके. Most effective biofilm in root canal treatment against sodium hypo. This all we know. Okay. Failed E. faecalis. The primary function of intracanal medicament, eliminate or control microorganism. Okay. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं बोलूँ शो बहुत करो बेटा, शोर थोड़ा कम करो. हिमांशु थोड़ा धीरे बात करो, प्लीज दरवाजा बंद करो हिमांशु अपना. Which of the following is a common method used to evaluate the effectiveness of root canal medication of bacterial culture? This is important. Following is a common method used to evaluate the effectiveness of root canal medication in bacterial culture. Agar diffusion test. Okay. Which microorganism is considered the most effective eradicating root canal? E. faecalis. अभी जाओ यहाँ से. Neutralizing endotoxins in infected root canals, chlorhexidine. Okay, this is also important. Rushi, which intracanal medicament is considered the best for neutralizing endotoxins in infected root canals? Okay, यहाँ पर chlorhexidine. Okay, which of the following is an emerging trend in root canal disinfection? Photodynamic therapy. Which of the following is a significant disadvantage of using hydrogen peroxide as an intracanal medicament? Now nowadays we don't use intracanal medicament hydrogen peroxide as an intracanal medicament. Starting में क्या था कि पहले बोला जाता था कि आपको ना ऑल्टरनेटिव यूज करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, जो पहले के टाइम में कि इट रिलीजेस बबल्स एफरवेसेंस, सुन रहे हो, एंड इट इज वेरी दिस थिंग. बट क्या डिसएडवांटेज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, if it goes beyond the apical foramen, ठीक है, जाने के बाद भी वो effervescence एक्शन वहां पर होते हैं. इट इज वेरी पेनफुल टू द पेशेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर टिश्यू के बाहर चला जाता है तो, ठीक है. इट इज ए हाई साइटोटॉक्सिसिटी टू पेरिअपिकल टिश्यू, सो द यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टोटली स्टॉप्ड नाउअडेज इन रूट कैनाल ट्रीटमेंट. ओके, कब यूज कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि पस है बहुत सारा, ठीक है, आपने केनाल खोला और फिर पस खूब सारा ऊज हुआ है, तब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है. गॉट इट रुचि? Yes, ma'am. Which bacteria is often associated with the development of post-endodontic lesions and reinfections? E. faecalis. Okay. And most common technique for confirming the presence of bacteria in root canal? PCR. The bacterial culture, sorry. The bacterial, most common technique is bacterial culture. Which of the following antibiotic has been shown to be effective in intracanal medicament? It's a ciprofloxacin. ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, उसमें क्या क्या होता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, मीनोसाइक्लोट्रिप्सिन होता है,
और मेट्रोनिडाजोल, है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोडाजोल और मीनोसाइक्लिन। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है उसमें कौन सा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव। Which intracanal medicament is frequently used to maintain an alkaline environment in the root canal to inhibit microbial growth? Calcium कैल्शियम hydroxide. हाइड्रोक्साइड, What is the mechanism of action of sodium hypochlorite in root canal irrigation? Protein denaturation dissolving organic matter. Which is the following bacterial species are most commonly detected in the root canal system during bacterial investigation? Just a minute. It's a E. faecalis, है ना, Enterococcus lactobacillus, तो Enterococcus faecalis। ठीक है, ये चैप्टर क्लियर हो गया। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर। अगर कोई और डाउट आता है, कुछ और टेक्निक आपके दिमाग में आते हैं कहीं पर कुछ भी, तो प्लीज आस्क। ठीक है, यस मैम। फिर डेवलपमेंट ऑफ रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आज आपको 2-3 चीजें न्यू बताई। एक तो एलएसटीआर बताया, आपको ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट बताया, और रिवास्कुलराइजेशन, now we'll cover up these questions. Okay, just not I just take water. So who introduced the first endodontic file made from a hot spring? एडविन मैनर्ड। ये अब नाम तो नहीं भूलोगे ना ऋषि? नो मैम। एंड हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री? पियरी फॉर्चर। Yes, and Roentgen he has discovered the X-rays. एक्सरेज। And John Greenwood, इसने क्या किया था? I just check डॉक्टर, एक मिनट में चेक करके बताती हूँ। Okay, he has come now. Okay, John Greenwood was a pioneering American dentist. Okay, best known for being George Washington personal dentist and for significant early contribution to dentistry in the US. Okay, the first known American dentist to use a foot powered dental drill. तो dental drill जो आई थी फर्स्ट फुट पावर्ड, वो इसी ने दी थी। ठीक है, एंड क्राफ्टेड जॉर्ज वॉशिंगटन फेमस डेंचर, इसने डेंचर भी बनाया था उनका। ठीक है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बनाया था उस वक्त। ठीक है, नोन फॉर प्रमोटिंग ओरल हाइजीन। Okay, what was the primary drawback of early carbon steel endodontic instrument? कोरोड इजीली। ठीक है, कार्बन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। व्हाट मेजर एडवांसमेंट इन एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट अकर्ड इन 1950s? के फाइल्स और वो आई थी ना, ठीक है, 50s एंड 60s में। तो क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन स्टील विद स्टेनलेस स्टील। ठीक है, द एच फाइल इज डिजाइन फॉर कटिंग डेंटिन एग्रेसिवली, एच फाइल में। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेन एडवांटेज ऑफ नाइट टाइप फाइल्स का क्या रहता है? इट इज अ मेमोरी शेप। ठीक है, इनका शेप मेमोरी रहता है, तो दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर मोर इफेक्टिव फॉर हाई रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। ठीक है, नाइट टाइप फाइल्स क्योंकि आराम से मुड़ जाती हैं, तो टूटती नहीं है जल्दी। जो आपकी जो दूसरी फाइल्स हैं, ठीक है, वो सब जल्दी ब्रेक डाउन होती है, सेपरेशन ऑफ फाइल्स होता है, इसमें जल्दी नहीं होता। द इंट्रोडक्शन ऑफ रोटरी नाइट टाइप इंस्ट्रूमेंट improve which aspect of root canal therapy? Speed and efficiency, and decrease procedural errors also. Okay, which of the following is a reciprocating endodontic system? रेसिप्रोकेटिंग एंडोडोंटिक सिस्टम क्या होता है? वेव वन गोल्ड। ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है।
ठीक है, वी डिडंट यूज एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग एंडोडोंटिक सिस्टम. क्या है? वेव वन गोल्ड फोल्ड, वेव वन गोल्ड. ओके, विल सी इसके बारे में. ठीक है. विच हैंड फाइल इज प्राइमरी यूज फॉर कैनाल नेगोशिएशन इनिशियल एनलार्जमेंट? के फाइल. ओके ओके, इट हैज कम. मैं एक बार बता रही, वेव वन गोल्ड क्या होता है. ओके. Wave 1 Gold is a single file reciprocating system used for root canal shaping, designed to simplify and speed up canal preparation with increased flexibility and safety. ठीक है, मतलब ये सिंगल फाइल हो रहती है. ठीक है, इसमें हम ऐसे नहीं यूज करते हैं कि हम जैसे बाकी में यूज करते हैं ना S1 S2 F1, इस तरीके से नहीं होता. इसमें इसका की फीचर क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है. ठीक है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे 150 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज कटिंग करेगी एंड 30 डिग्री क्लॉकवाइज रिलीज करती है उसको. ठीक है, तो इसमें दोनों मूवमेंट चल रहे होते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ, कटिंग भी और रिलीजिंग भी. तो 150 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, कटिंग कर देगी. तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है रिलीज करने के लिए. रिड्यूसेड टॉर्शन स्ट्रेंथ एंड फाइल सेपरेशन. तो इसमें फाइल सेपरेशन काफी कम होता है. गोल्ड हीट ट्रीटेड नाइटाई अलॉय रहता है. इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, better resistance to cyclic fatigue, follows canal curvature with less transportation, single use file system, enhances safety, minimize cross contamination where single use, मतलब एक पेशेंट में एक ही फाइल यूज होगी बस ये. Single use file system enhances safety, minimize cross contamination where available file sizes small, primary, medium, large. ठीक है, 20, 25, 35, 45. One file per canal, faster preparation, minimize the number of steps, good for curved canal, less chance of instrument fracture, efficient debris removal, create glide path with small hand files or rotary glide path, use wave one gold file in reciprocating motion with a compatible motor, irrigate copiously with sodium hypochlorite and lubricate. मतलब कि आप पहले ग्लाइड पाथ प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आपको नंबर मल्टीपल फाइल्स यूज करने की जरूरत नहीं है. ये सिंगल फाइल यूज होती है बस. ठीक है, गॉट इट? याद रहेगा ये वे वन गोल्ड. Yes, ma'am. दिव्या एक्चुअली इज ज्वाइनिंग अस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. तो आई डोंट नो कि दिव्या की अभी थोड़ा कनेक्टिविटी. हाँ, अभी इतना ज्यादा एक्चुअली आपने काफी टाइम के बाद कनेक्ट कर रहे हो. आई थिंक दिस इज योर सेकंड सेशन, राइट दिव्या? सो आई डोंट नो हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद द टॉपिक. Okay, which hand file is primarily used for canal negotiation and initial enlargement? तो K फाइल. ठीक है, कैनाल नेगोशिएशन इनिशियल एनलार्जमेंट हम K फाइल यूज करते हैं. ठीक है, which feature of heat treated night file enhances their performance, higher flexibility and resistant to cyclic fatigue? Smart endodontic instrument integrate which of the following technology? बोथ ए एंड सी. एआई असिस्टेड टॉर्क कंट्रोल आ गया इनमें स्मार्ट फाइल्स में, एंड दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी कोटिंग्स आ गई हैं इसके अंदर. ठीक है, स्मार्ट एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, स्टरलाइजेशन में व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टरलाइजेशन मेथड? ऑटोक्लेविंग. ठीक है, ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेस इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम. Which sterilization method is used for heat sensitive instrument? इथिलीन ऑक्साइड, जो आपको बताया था मैंने, प्लास्टिक रबर सिरेंजेस ये जो होती है, ये कहाँ पर यूज करते हैं? इथिलीन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन यूज करते हैं. ठीक है, ओके. व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ऑटोक्लेविंग एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट? ए ऑप्शन 121 डिग्री at 15 psi pressure.
व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होगा अगर ड्राई हीट यूज कर लॉन्गर स्टरलाइजेशन टाइम 2 आवर्स रहता है ना उसमें 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड फॉर 2 आवर्स. ठीक है. Why is chemical sterilization not commonly recommended for endodontic files? कि not effective actually. It does not eliminate all spores. ठीक है. Which is the following. हम फाइल्स को हमेशा ऑटोक्लेव करते हैं. ठीक है. या फिर आप ग्लास बीड स्टरलाइजर यूज करते हो. ठीक है. विच इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन कॉमनली यूज इन कोल्ड स्टरलाइजेशन? ग्लूटाल्डिहाइड. Plasma sterilization uses which agent for microbe elimination? Hydrogen peroxide gas plasma. ठीक है. Which sterilization method is most suitable for single use disposable instrument? Gamma radiation. ये भी important है. ये gamma radiation जो ये हमने इथिलीन ऑक्साइड का पढ़ा है ना वैसे इसका भी just a minute I'll tell you about the gamma radiation. Okay. This is same. एक बार just one. मैं gamma radiation is a type of ionizing radiation consists of high energy electromagnetic waves. Key features are no mass or charge, high penetration power, destroys DNA or microism, used in controlled shielded environment. Application dentistry में बताया है कि syringes, surgical tools, गट्टा पर्चा, endodontic files. ठीक है. Sterilization of डिस्पोजेबल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. रेडियोथेरेपी में भी यूज करते हैं. कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स. डेंटल मटेरियल स्टरलाइजेशन फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल वेयर ऑटोक्लेविंग इजंट पॉसिबल. तो डीप पेनिट्रेशन, नो हीट, kills all microbes, requires special facility, can degrade some materials over time, expensive setup. Okay. Why okay, why are single use and gaining popularity? Single use endodontic instrument gaining reduces cross contamination risk. Okay, all of the above. Okay, no need for sterilization, cost effectiveness, and all of the above. अच्छा है. एडवांसेस इन हमें भी अच्छा है. एक तो फाइल टूटेगी नहीं. आप हर पेशेंट के लिए एक नया खरीदो, पेशेंट से खरीदो कि आपकी फाइल इतने का है, तो पेशेंट को बताने में भी आपको इजी रहेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि कितना आपका खर्चा वो हो रहा है. या आप पेशेंट को ही बोलो कि आप खरीद के लेकर आओ या आप उसमें यूज कर लो. और अब हम क्या था, हम कई फाइल्स को दो दो तीन तीन चार पेशेंट में यूज करते हैं, तो कई बार वो फाइल बीच में ब्रेक डाउन हो जाती है. Advances in instrument design and sterilization. What is the primary goal of smart autoclaves in endodontics? Real-time monitoring of sterilization parameters. Which nanotechnology advancement helps prevent microbial adhesion on instrument? It's a and C. Silver nanoparticle and graphene coating. Bioactive endodontic files are being developed to release antimicrobial agent, enhance dentine regeneration. Okay. D option. AI-based torque control in rotary night eye system help prevent all of the above. ठीक है. What is the latest trend in root canal instrumentation? 3D printed endodontic files, self-cleaning instruments, bioengineered night eye alloys, all of the above. Okay. Okay. The taper of a conventional stainless steel file is usually कितना होता है? 0.02 per mm. ठीक है. A option. Which file system is designed for minimal invasive endodontics? Wave 1, True Not Me. एक बार I'll tell you about this minimal invasive endodontics. True Not Me. Minimum invasive endodontics. True
Not me. Okay, minimizing invasive endodontic focus on preserving as much natural tooth structure as possible while effective cleaning and shaping the root canal system. Maximize tooth strength, narrow excess cavities. True anatomy system key point. It's a Dentsply Sirona is a rotary endodontic file system designed specifically for minimum invasive canal preparation. Heat treated NiTi file improve flexibility and fatigue resistance. Slim file design with 0.8 mm file, maximum fluted diameter, off-centered parallelogram cross. There is a taper is available in size of glide path, small frame. Uh, Preserve coronal and radicular dentine. Okay. Less invasive, exercise, smooth canal transportation designed for curved canals. Philosophy of minimum invasive dentistry. Okay. ठीक है. Which of the following is a heat-treated NiTi rotary system? H file XF. Which feature differentiates CM via NiTi file from traditional NiTi files? Controlled memory via NiTi files from traditional NiTi files. Control memory for improved flexibility. Okay. The SX file in the ProTaper system is mainly used for SX किसके लिए यूज करते हैं? कोरोनल एनलार्जमेंट के लिए बेटा, ठीक है. क्राउन डाउन प्रिपरेशन है ना, कोरोनल एनलार्जमेंट. Sterilization of endodontic instrument. The main drawback of steam autoclaving for NiTi file is रिडक्शन इन साइक्लिक फैटिक रेजिस्टेंस. ठीक है, इसलिए हम नहीं प्रेस करते नाइटाई फाइल्स को स्टीम ऑटोक्लेव, ब्रेक डाउन हो जाएंगे पी फाइल. विच स्टरलाइजेशन मेथड इज लीस्ट लाइकली टू डैमेज नाइटाई फाइल? इट्स अ प्लाज्मा स्टरलाइजेशन. The primary function of ultrasonic cleaning before sterilization is to remove organic debris. ठीक है. The recommended time for autoclaving at 124/15 size 15 minutes. Sterility assurance level refers to probability of single viable microorganism surviving after sterilization. Recent advances in instrument sterilization. The latest advancement in routine NiTi file includes all of the above. What is the primary benefit of single-use NiTi instrument? Reduce risk of cross-contamination. The use of gold heat-treated NiTi files helps in enhancing flexibility and fatigue resistance. What is a key? What is the key advantage of rotary glide path files like ProGlider? Key advantage rotary glide path का reducing instrument separation. Okay. Which laser system is now being used for sterilizing endodontic instrument? Both iridium or yttrium aluminum garnet भी और neodymium और yttrium arnium garnet. ठीक है, both A and C. Clinical implications, safety concern. Excess sterilization cycle in NiTi rotary can lead to surface micro cracks and increased fracture risk. Which sterilization method is now recommended for high value reusable NiTi file? Hydroxyl peroxide plasma sterilization. ठीक है. What should be done to prevent contamination of endodontic instrument? Contamination. All of the above. Use single use barriers, proper sterilization cycle, avoid overuse of file. In which clinical scenario would cold sterilization be recommended? कब करना है कि कोई इमरजेंसी आ गई अचानक से, आपके पास टाइम नहीं है, तो देन यू कैन यूज कोल्ड स्टरलाइजेशन. ठीक है, इमरजेंसी स्टरलाइजेशन ऑफ NiTi इंस्ट्रूमेंट. अ मेजर कंसर्न विद मल्टीपल रीयूज ऑफ रोटरी एंडोडोंटिक फाइल. मल्टीपल रीयूज करेंगे तो क्या होगा? हायर साइक्लिक फिटिंग एंड okay, sonic and alternative rotary endodontic instrument, sonic and laser assisted instrument. The use of artificial intelligence in endodontic procedures, all of the above. Nanotechnology in root canal instrument helps with the antimicrobial surface coating, fracture resistance, and reduce debris, all of the above. A future trend in sterilization technology for endodontic instrument is all of the above: self-sterilizing instrument, antimicrobial photodynamic therapy, AI-powered sterilization monitoring. So, what is the newest innovation in minimal invasive endodontic instrumentation?
ऑल ऑफ द अबव, है ना? ठीक है, बायोएक्टिव नाइट्राइल फाइल, क्वांटम डायनेमिक लेजर एक्टिवेशन, शेफ मेमोरी. So this is finished. Now we'll cover up the third chapter MCQ also. Okay. Please tell me, Rushi, which property is most important for endodontic obturation material? Biocompatibility. बायोकम्पेटिबिलिटी. What is the main disadvantage of gutta percha as an obturation material? वो डेंटिन से नहीं देता, पूरा एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी. यहाँ पर डेंटिन के साथ तो बॉन्डिंग तो दिया ही नहीं है, तो पुअर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. ओपेसिटी इज गुड. Okay, what is the primary function of endodontic sealer? Is seal the इन द space स्पेस between. बिटवीन. Which material? I'll read the question. You speak the answer. Okay. Which material is considered the gold standard for root canal obturation? गट्टा पर्चा. What is the most commonly used type of gutta percha in root canal therapy? बीटा फेज. Beta phase. Okay. Gamma and zeta phase भी होता है, लेकिन we have not, मतलब इसमें हमें ज्यादा उसमें किया नहीं, हमें से अल्फा एंड बीटा ही पढ़ाया गया जाता है ना. Okay, advances in endodontic obturation technique. Which obturation technique provide the best adaptation to irregular canal walls? वाम वर्टिकल कंपैक्शन. What is a major advantage of bioceramic sealer? Ability to bond chemically with the dentin. The single cone technique is mostly used with Bioceramic sealers. thermoplasticide gutta percha is primarily used in which technique? Carrier based obturation. कैरियर बेस्ड ऑब्चुरेशन. ठीक है. तो एक जो थर्मोप्लास्टिक इनकी गन आती है पूरी की पूरी, और में छोटे छोटे पैलेट होते हैं गट्टा पर्चे के, वो अंदर भरे जाते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर किनार में फ्लो होते हैं. ठीक है. ओके. विच द फॉलोइंग ऑब्चुरेशन टेक्निक हैज द लोवेस्ट माइक्रो लीकेज? वार्म वाम वर्टिकल. वर्टिकल कंपैक्शन. Which component in resin based sealers improves their bonding strength? Epoxy resin. What is the main advantage of calcium hydroxide based sealer? Weak bonding to the dentin. Okay. Main disadvantage. Okay. What is the key function of a sealer in obturation? Eliminate voids and gaps. Which bioceramic based sealer is widely used in endodontics? Endosequence PC sealer. Yes. ठीक है. Seal Apex is a calcium hydroxide based sealer. Ross sealer is a JEDOI. ठीक है. AH plus is a resin based. ठीक है. Okay. Gutta Flow 2 is an example of which type of sealer? Silicon based. Silicon based. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट में उसमें पढ़ा था ना गट्टा फ्लो 2. रिस्ट्रिक्टिव कंसिडरेशन. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द गट्टा फ्लो 2 सीलर के बारे में भी थोड़ा सा, है ना, कि आई विल शेयर विद यू. Sealer. Okay, the most commonly used restrictive material for coronal sealing after RCT is Composite GIC. resin. Okay. GIC is commonly used in endodontics for? Temporary restoration. Yes. Core buildup. Temporary restrictions. Okay. हम we as Indian तो we use at a core buildup, है ना? Yes, ma'am. है ना, हमारे इंडिया में तो कोर बिल्डअप यूज करते हैं उसको. Okay, I tell you about the Gutta Flow 2 is a cold flowable root canal obturation material that combines गट्टा पर्चा पाउडर एंड सीलर इन वन. ठीक है. इसमें गट्टा पर्चा का पाउडर रहता है और सीलर रहता है साथ में. ठीक है. एंड कॉम्बिनेशन सीलर प्लस फाइनली ग्राउंडेड गट्टा पर्चा. कोल्ड एप्लीकेशन, नो नीड फॉर हीट. Silicon based sealer with polydimethoxysiloxane contains nano silver particles, antibacterial, slight expansion of setting, good sealing ability, biocompatible and radio opaque.
एडवांटेज इजी टू यूज इन सिरिंज फॉर्म में आता है ये। जैसे मेटापेक्स हम भरते हैं ना रूट किनाल्स बच्चों के, वैसे ये भरा जाता है। नो श्रिंकेज, एक्सीलेंट फ्लो इनटू लेटरल किनाल्स एंड इरेगुलरिटी, नो सेपरेट गट्टा पर्चा कोन रिक्वायर्ड। Indication root canal obstruction in combination with the master cone or alone, particularly useful narrow or curved canal. Setting time approximately 12 to 16 hours in moist environment. Gutta flow 2 is ideal for simple clean cases where a cold flowable obstruction system can efficiently seal the canal with minimal technique sensitive. Okay. Rushi, clear? Gutta flow 2? Yes, ma'am. Okay. Which post-endodontic restoration provide the best long-term survival? Full coverage. Coverage. Which material is best effective for perforation repair in endodontics? MPA. Which core material? Just a minute. Which core build-up material is commonly used after RCT? Composite resin. हाँ, composite resin, ठीक है। सिल्वर अमेलगम तो बैन हो चुका, नहीं यूज करते, बहुत कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, advances in endodontics. Nanoparticles in endodontic sealers are used to increase Bacterial bacterial resistance. resistance. What is the major advantage of fiber reinforced composite post in RCT treated tooth? Minimum strike transmission to dentin. Bioactive glass is used in endodontics for Pulp capping. pulp capping. Okay. Just a minute, I'll tell you about bioactive glass. Minute. Okay, the best restorative approach for a fractured endodontically treated molar is full coverage Full crown. coverage crown. Zirconia crown are commonly used for endodontically Endodontic. treated. अब यहाँ पे पोस्टीरियर टीथ नहीं लिखा था तो एंटीरियर टीथ हमने टिक किया, ठीक है। वैसे एंटीरियर टीथ के लिए हम ई मैक्स क्राउन प्रेफर करते हैं। Bioceramic materials are increasingly used due to their ability to bond Excellent to sealing properties. their excellent sealing properties. Okay. 3D printed restoration endodontics are mainly used for. Custom. Okay, just a minute. Custom post and core system. What is the purpose of MTA based sealers? Promote periapical healing. Self adhesive flowable composite are used in endodontics restoration to improve sealing ability. ठीक है. Which new technology improves sealer penetration to dental tubules? और इसमें all of the above भी mark है. Okay, हाँ. Okay, all of the above. Self-adhesive flowable compounds are used in endodontics restoration to improve sealing ability, reduce micro leakage, okay, increase mechanical retention. Self-adhesive, all of the above. Increase mechanical retention, improve self-adhesive flowable composite, self-adhesive. अगर आप यूज करते तो इंक्रीज मैकेनिकल रिटेंशन हो सकता है, कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव भी चलेगा, है ना। रिड्यूस माइक्रो लीकेज भी है ना। विच न्यू टेक्नोलॉजी इंप्रूव सीलर पेनिट्रेशन टू डेंटिनल टिब्यूज? नैनो पार्टिकल बेस्ड सीलर्स। ओके ओके, नाउ अब केस सिनेरियोज हैं। A 35-year-old patient present with deep carious lesion in the mandibular first molar. After clinical radiography evaluation, the dentist decides on root canal treatment. कितने साल का? 35. During observation, the dentist choose bioceramic sealer instead of resin-based sealer. What is the most likely reason for selecting bioceramic sealer over resin-based sealer? Bioceramic sealers provide antimicrobial property in chemical bonding. Yes. During observation, the dentist observe voids in the canal filling. What is the most probable cause? Any device condensation of the sealer. Yes. और दूसरा, ये जितने भी ये है ना कैल्शियम ऑक्साइड बेस सिले, इन सब में आते ही वॉइड्स। आप चाहे कितना भी अच्छा फिलिंग करो। ओके, a 50-year-old female patient with type 2 diabetes undergoes root canal therapy in the upper first premolar. The clinician decides to use MTA for obturation due to the patient compromised healing response. ओके, आपने देखा है ना बहुत से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना, आप चाहे कितना भी अच्छा अच्छा रूट कैनाल करो, उनको पेन होता ही होता है।
ठीक है, तो why is MTA preferred for this case? It has excellent biocompatibility and promote प्रमोट healing. हीलिंग। ठीक है, अगर जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है ना, तो उसको अगर पहले रेडिएशन थेरेपी दे, आप उसमें ना अच्छा रूट कैनाल करो, आप गट्टा पर्चा यूज, स्टिल उसको पेन होगा बाहर में, तब उन केसेस में भी आपको एमटीए यूज करना चाहिए। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन द डेंटिस्ट प्लेसेस अ फाइबर पोस्ट एंड कॉम्पोजिट कोर बिल्डअप। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर सिलेक्टिंग ए फाइबर पोस्ट इंस्टेड ऑफ मेटल पोस्ट? To फाइबर पोस्ट provide की, better, हाँ, क्योंकि स्टैटिक में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है, जो रेजिलियंसी डेंटिन के साथ दैट मैचेस विद द फाइबर पोस्ट की, है ना, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। और मेटल पोस्ट में ना आपके फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं टूथ के। व्हाट, ओके, ए रेडियोग्राफ शोज अ रूट कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन विद ओवर एक्सटेंडेड गट्टा aperture beyond the apex. What is the most likely complication of overextended obturation? apical Apical periodontal. to persistent irritation. What is the best approach to manage overextended obturation case? एपिसेक्टमी विद Episectomy. रिट्रोग्रेड फिलिंग। लेकिन सच है कि उसका रीट्रीटमेंट कर दो निकाल के। Yes, ma'am. कंप्लीट रिमूवल ऑफ द गट्टा पर्चा। अगर सपोज को कंप्लीट हम रिमूव, क्योंकि एक्चुअली गट्टा पर्चा इज वेरी ब्रिटल, है ना, तो कई बार वो निकालता हो सकता है अपेक्स के वहां से ना निकले, फिर क्या करोगे? यू हैव टू गो फॉर द एपिसेक्टमी फिर रिट्रोग्रेड फिलिंग। तो पहले यूजुअली लोग करते थे एपिसेक्टमी बहुत ज्यादा, अब तो नहीं यूज होती इतना। A cross-sectional microscopic image of the dentinal tubules after the application of resin-based sealer shows incomplete penetration of the metal into the tubules. What could be the primary reason for poor penetration of the resin sealer? Inadequate smear layer removal. Hmm. Okay. What technique could improve the penetration of resin-based sealers into dentinal tubules? Passive ultrasonic activation. Okay. In an endodontic excess cavity preparation, maxillary first molar is shown, but the cavity is off-centered, missing one of the canal. What is the most likely missed canal in this case? MB2. Actually, diagram है नहीं. Okay. Okay. I have a, which of the following technique is most useful for locating a missed MB2 canal? Magnification using operating microscope. Okay. A 40-year-old male patient present with pain in the left lower left first molar. Clinical radiographic examination confirmed periapical lesion and pulpal necrosis. Root canal treatment is planned and calcium oxide is chosen as an intracanal medicament. What is the primary mechanism of calcium oxide in root canal therapy? Induction of mineralization and antibacterial action. The calcium oxide dressing is removed after 2 weeks and the canal is obturated using gutta percha and a resin-based sealer. What is the most appropriate technique for ensuring complete removal of the calcium oxide? Irrigation कैसे? with the sodium hypo. Irrigation with sodium hypochlorite and passive ultrasonic activation. ठीक है? A 55-year-old diabetic patient undergoes a root canal procedure for chronic apical periodontitis. The dentist chooses MTA for obturation. Why? High biocompatible ability to promote periapical healing. After obturation with MTA, resin-based GIC core buildup is placed. What is the primary reason for choosing a resin-modified GIC over composite resin? Fluoride Fluoride release, release. polymerization, shrinkage. Okay. Okay. Radiograph showing overextend gutta percha beyond the apex. ये तो हो गया ना हमारा, हाँ. Okay, same questions. What is the best method to prevent overextension during obturation? Measure precise working length with an electronic apex locator or take RVG before sealing the canal. ठीक है? SAM. ठीक है? Image of a, this is electro वो. SAM is what? Scanning Electronic. electron microscope. आफ्टर यूजिंग ईडीटी एंड एनओसीए, ठीक है, यूज करने के बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी बता रहे हैं, शोज क्लीन डेंटिनल टिब्यू विद ओपन ल्यूमेन आफ्टर ईडीटी एप्लीकेशन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईडीटी इन रूट कैनाल प्रिपरेशन? रिमूवल ऑफ द स्मेयर Removal लेयर टू of the इंप्रूव smear सीलर layer. पेनिट्रेशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद ईडीटी, फर्स्ट ऑप्शन. Hypo dissolve organic tissue while EDTA remove inorganic debris, dentinal debris. ठीक है, ओके. Cross section of endodontic treated showing poor adapted sealer. Okay, what is the likely cause of voids in the sealer? Improper condensation of gutta percha. Okay, what technique can help a better adaptability of sealer to dentin? Warm vertical compaction of gutta percha. ठीक है, these are the questions.
और दिमाग में कोई और कुछ आ रहा है ऋषि पूछने के लिए, या इन टॉपिक में से कुछ और? अभी तो नहीं, मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। है ना? तो है ना, विल कवर कि जो टॉपिक्स जो दिए थे एग्जाम में ये सब वो कवर किए हुए हैं, ठीक है? और अगर कुछ और भी आता है तो प्लीज मुझे बताना, विल कवर अप। ओके मैम। अभी आई हैव गॉन दिस टेक्निक, कौन सा मैंने भी पूछा था, बायोएक्टिव ग्लास, ठीक है? बायोएक्टिव ग्लास इज ए टाइप ऑफ बायोकम्पेटिव मटेरियल used in dentistry and medical, known for its ability to bond with bone and soft tissues, promoting regeneration and healing. Mainly consists of silicon dioxide, calcium oxide and sodium oxide. For ये क्या है दिया है? Mechanism releases calcium phosphatine that form a hydroxycarbonate apatite layer on its surface, similar to natural bone mineral. This layer promotes bone bonding and regeneration. Used in dentistry, bone graft substitute, dental restorative material, यूज इन टूथपेस्ट में भी यूज होता है ये बायो प्लस सेंसोडाइन उन सब में, रिपेयर ऑफ डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, ऑस्टियो कंडक्टिव ऑस्टियो स्टिमुलेटिव प्रॉपर्टी है, टिश्यू रीजनरेशन, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ड्यू टू पीएच इंक्रीज। एग्जाम्पल इन नोवा बोन पेरियोग्लास दिया हुआ है, ठीक है? अभी पूछा था ना उसमें, पर यस मैम। कैपिटल यूज किया था इसको, ठीक है? अर्लियर मैम कौन एक सा? ना, हाँ पूछो। मैम जैसे ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का जो मोशन होता है ना, जैसे हाँ हाँ, वॉच वाइंडिंग मोशन, लीनियर ओके, हाँ, मोशन, हम लोग तो ओके। वो ना आप एक कोई चार्ट फॉर्म में हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा मोशन करते हैं, वो एक्सप्लेन किया हुआ कुछ ऐसा इजी वे में। अच्छा, ठीक है, मैं आपको देखती हूँ, ठीक है? यस ओके, मैम, वो आप सर्च करके दे दीजिएगा। है ना? हाँ। और कुछ पूछने, और कुछ चाहिए? मैंने आई हैव रिटन, मैं इसके बारे में आपको और दे दूंगी डिटेल्स। मैम अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस होते हैं, ठीक है? मैनुअल पुश पुल मोशन, वॉच वाइंडिंग मोशन होता है, बैलेंस टॉर्क, रिमिंग मोशन, ठीक है? मैं आपको इनका डिटेल्स देती हूँ ना, दे दूंगी। यस मैम। ठीक है, लेट्स ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको दे रही हूँ ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहे हैं, इनको ना कीप रिवाइजिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? क्योंकि अभी का जो सेशन होता है उसमें हम लोग थ्योरी तो कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी साथ में कवर कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आई एम गिविंग यू इन द दिस थिंग व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलो, ओके, बाय, ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।